Good morning, dear students. Today we will do the question number 8 of exercise 3.5. Your question is, the volume of a cube is 216 centimeter cube. If the length of the edge is increased by 2 times, what would be the volume of the new cube? How many times the volume will increase? तो क्लास क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम आपको एक क्यूब का दे रखा है, फिर उस क्यूब की जितनी भी एज है उसको डबल कर दिया गया, तो हमारा उस क्यूब का न्यू क्यूब बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा। मीन्स अगर हमारे पास कोई भी क्यूब है उसका वॉल्यूम है 216, फिर वो उसकी जितनी भी साइड थी उसको हमने डबल कर दिया, तो न्यू क्यूब का वॉल्यूम आपको बताना है एंड यू हैव टू टेल कि वॉल्यूम कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, दिस इज the volume of the cube is 216 centimeter cube. So what is the formula for volume of cube? This is side cube. It means side cube is giving to you 216. So what would be the side? The cube root of 216, and we are knowing the cube root of 216 is 6, क्योंकि 216 जो है 6 का क्यूब होता है। 6 6 36 and 36 6 is 216. So side is equals to 6 centimeter. So what will be the side of the new cube? So new side is 2 times means multiplied by 2. So 6 into 2 is 12 centimeter. So what would be the volume of the new cube? नए साइड का हम क्यूब निकालेंगे, तो न्यू साइड इज 12, तो 12 क्यूब इज 12 into 12 into 12 is 1728. So now what we will do, we have to tell how many times it will be. So we will find the ratio of new volume divided by the original volume. The new volume is 1728 and the original is 216. When we divide, we get 8 in the answer. It means the volume of the new cube is 8 times the volume of the original cube. This question is very simple, class. Now look at the 9th question. This is there are 3 cubes. Their volumes are in the ratio 2:3:4. There are 3 cubes. Their volumes are in the ratio 2:3:4. The sum of the volumes of the cubes is 19,773 centimeter cube. Find the volume of each cube. तो टोटल वॉल्यूम आपको 3 क्यूब्स का दे रखा है और 3 क्यूब्स का वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, और आपको एक पर्टिकुलर क्यूब का वॉल्यूम बताना है। क्लास बहुत ही सिंपल है क्लास। रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स क्या दे रखा है? 2:3:4। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 कितना, लेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 बी V1 बी 2x। पहले क्यूब का वॉल्यूम हमने 2x मान लिया, दूसरे का 3x और तीसरे का 4x, क्योंकि वॉल्यूम रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स क्या दे रखा है? 2:3:4। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों का वॉल्यूम का सम कितना दे रखा है? 19,773 मीन्स V1 प्लस V2 प्लस V3 इज 19,773 means 2x plus 3x plus 4x equals to this much. So 9x equals to this much. So x equals to divided by 9 comes 2197. And what we have to find? We have to find out the volume of individual cube. So what we will do? Just multiply it by 2 because this is 2x, this is 3x and this is 4x. So when we will put the value, we get these answers. This question is very simple question of class. You can do it easily. Now look at the question number 10th. Now class, please look the question number 10th very carefully. This is very important question. Please look it very carefully. Here what you have to do class, you have to find out the cube root of the numbers. And देखिए क्लास, अभी तक आपने जो क्यूब रूट के मेथड्स किए थे उसमें आपका एक एस्टिमेशन मेथड था और एक था आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दोनों ही केसेस में आपको परफेक्ट क्यूब नंबर्स दे रखे थे जो किसी ना किसी नंबर के परफेक्ट क्यूब्स थे, लेकिन यहाँ पर जो आपसे क्यूब रूट पूछा गया है वो नंबर्स आपके परफेक्ट क्यूब नहीं है। मीन्स जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो 110 दे रखा है। तो देखिए जो 4 का क्यूब है दैट वॉज 64 एंड 5 का क्यूब इज 125। तो ये 64 और 125 के बिटवीन का नंबर है। इट मीन्स इसका जो क्यूब रूट होगा वो 4 और 5 के बीच में होगा। मीन्स 4 से ज़्यादा होगा, 5 से कम होगा। तो ये तो एक एस्टिमेटेड आंसर हो गया कि इसका जो क्यूब रूट है वो 4 और 5 के बीच का होगा,
पर फिर भी वो कितना होगा, मीन्स डेसिमल में कुछ उसका आंसर होगा, तो वो डेसिमल में क्या आंसर होगा उसके लिए क्लास हमें एक टेबल दे रखी है आपकी बुक में, उसको हमें यूज़ करना होगा। हालांकि मैं आपको क्लास बता दूं, देखिए ये है आपकी टेबल बुक में दे रखी है, तो इस टेबल को यूज़ करके जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है, इसमें जो क्यूब रूट्स आपको दे रखे हैं क्लास, वो 1 से लेके 200 तक के क्यूब रूट्स दे रखे हैं आपको। ध्यान से देखिए क्लास, आपको ये 200 तक का दे रखा है यहाँ पर। तो ये क्यूब रूट आपको 1 से लेके 200 तक के दे रखे हैं। और क्वेश्चन में आपके क्या दे रखा है क्लास, एस्टिमेट द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे नॉट को आप कट करेंगे, डू कंसर्न द टेबल, टेबल को यूज़ करते हुए आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। बहुत ध्यान से देखिए क्लास, कैसे करेंगे आप। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 110 है ना, तो आपको क्यूब रूट्स कहाँ तक दे रखे हैं, 200 तक। तो 110 का तो डायरेक्ट आप टेबल से देख के डायरेक्ट आंसर लिख देंगे क्लास, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है। तो 4.79 इज द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 500। सो हाउ यू विल फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ 500 क्लास, बिकॉज 500 का तो टेबल में भी नहीं दे रखा है। सो हेयर व्हाट यू विल डू, यू विल फाइंड द प्राइम फैक्टर्स फर्स्ट। सो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 500 आर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब क्यूब रूट के लिए क्लास हम कितने कितने का ग्रुप बनाते हैं, 3 का ग्रुप। तो यू कैन क्लियरली सी 5 का तो आपका 3 का सेट बन गया, लेकिन 2 का नहीं बना है आपका। तो द क्यूब रूट ऑफ 500, आपने क्यूब रूट का साइन लिया, तो जब भी हम क्यूब रूट का साइन लिखते हैं तो क्लास उसमें से हम 3 में से 1 लिखते हैं। इट मीन्स तो आउट ऑफ दीज 3 5 वी विल राइट 1 एंड दिस इज लेफ्ट अनपेयर्ड, मीन्स इसका तो 3 का ग्रुप बना नहीं है। तो 2 to the 4 का क्यूब रूट आपको फाइंड करना है। 2 to the is 4, तो 4 का क्यूब रूट यू हैव टू फाइंड आउट। देखिए 5 का तो आपका 3 का सेट बन गया है, बहुत ध्यान से सुनिए, तो 5 तो आपका इधर आ गया। सो द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 500 इज 5 क्यूब रूट 4, 5 क्यूब रूट 4 का क्यूब रूट आपको फाइंड करना है। तो 5 यू विल राइट एज इट इज मल्टीप्लाइड। नाउ द क्यूब रूट ऑफ 4 इज गिवन इन द टेबल, दिस इज 1.587। क्लास एग्जाम्स में भी आपको या तो इस क्वेश्चन के लिए टेबल दी जाएगी या आपको रिक्वायर्ड रूट्स दे दिए जाएंगे। सो द वैल्यू ऑफ दिस इज 1.587। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस बिकम्स 7.935। अप्रॉक्सीमेट आंसर्स होते हैं क्लास ये, इस तरीके से आप इसका आंसर्स जो है डेसिमल में निकालेंगे क्लास, है ना। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन अगर आप इसका देखिए क्लास, जो आपको दे रखा है, देखिए आप इसको अगर आप इस तरीके से सोचें, बहुत नियर नंबर है 8 का, और 8 का क्यूब क्या होता है 512, तो और ये है 500, अप्रॉक्स 5 के क्यूब के अप्रॉक्स आंसर था 512 के पास में है 500, तो देखिए बिल्कुल 7.935, बहुत नज़दीक आंसर आया है ये 8 का। तो इस तरीके से आप अपने आंसर की ये देख सकते हैं कि आपने आंसर सही निकाला है या नहीं। एग्जाम्स में आप थोड़ा सा चेक कर सकते हैं इस तरीके से, क्रॉस चेक। लुक एट द क्वेश्चन नंबर सी, दिस इज 1750। So when you do the prime factor of this is 2 into 5 into 5 into 5 into 7. Here 2 का सेट नहीं बनेगा, 3 का 7 भी नहीं, लेकिन you can see 5 का जो है ट्रिपलिंग हो गई है। It means 5 आपने जब क्यूब रूट लिखेंगे इस नंबर का 1750 का, तो 5 is written only 1 time and 2 and 7 is 14. So now you have to multiply this 5 by the cube root of 14. 2 7 था 14 का क्यूब रूट आपको फाइंड करना है क्लास, क्योंकि देखिए ये तो 3 में से 1 आ गया आपका, 2 और 7 रह गया। नाउ द क्यूब रूट ऑफ 14 इज गिवन इन द टेबल 2.41। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई 5 by 2.41 इट बिकम्स 12.05। प्लीज लुक some more questions. This is the cube root of 4000. Now the prime factors of these are 2 into 2 into 2 into 2 into 2, means 5 times you will write 2, then 5 into 5 into 5. So the cube root of 4000 is the cube root of all these roots, means अब यहाँ पे देखिए ये 2 का एक 3 का सेट बना है, 5 का भी 3 का सेट बना है, लेकिन 2 times 2 आपके रह भी गए हैं जिनका 3 का सेट नहीं बन पाया है। So you will take out 1 2 1 5, and what is left in the cube root, 2 2s are 4. So this 2 5s is 10 and the cube root of 4 is 1.587. This we will look from the table that is given in the book.
When you multiply these two, this becomes 15.87. I hope class you understood this very well. Now look at the last question of this exercise. That was question number E. This is 3325. In this question class, when you do the prime factorization, you get 5 into 5 into 7 into 19 class. So here there is no set of 3. कोई भी 3 का set नहीं बन रहा है. So here you have 2 or 3 methods class. What you can do, आप इसमें 5 5 या 25 मल्टीप्लाइड बाई 133 लिख सकते थे. मीन्स 25 का क्यूब रूट आप अलग से निकालेंगे और 133 का आप अलग से निकाल सकते थे. या फिर आप क्या कर सकते थे, मैंने 5 5 तो 25 लिख दिया. ये 7 का क्यूब रूट और 19 का, इन सब का आप इंडिविजुअल क्यूब रूट निकालेंगे. मीन्स द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर इज द क्यूब रूट ऑफ ऑल दिस. तो 5 5 25, 7 और 19 का जो है हम क्यूब रूट सेपरेटली निकालेंगे. तो 25 का आपको टेबल में दे रखा है, 7 का दे रखा है, 19 का भी दे रखा है. टेबल से हमने नोट किया, मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने इसको 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ किया डेसिमल में. तो आंसर आ गया 14.89 क्लास. अगर आप इसको डायरेक्ट 25 और 133 का भी आप आंसर का क्लास देखते तो भी आपका जो है आंसर इसी तरीके से अप्रॉक्स आंसर ही आएगा. और अगर आप 5 और 5 का भी 2 बार लिखें और फिर 7 का और 19 का सबका अलग अलग लिख के भी मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्स आंसर क्लास आपको यही मिलेगा. बट इट इज़ बेटर कि आपको, क्योंकि 200 तक की टेबल दे रखी है, तो आप जो है इसको उसी के अकॉर्डिंग आप यूज़ करके अपना कर सकते हैं. एग्जाम्स में अगर आपको पर्टिकुलर नंबर्स दे रखे होंगे जिन जिनका क्यूब रूट दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने फैक्टर्स को लिख के आप अपने आंसर को फाइंड कर सकते हैं. ये क्लास थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें आपको टेबल को यूज़ करना है और उसके बाद मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ से आंसर फाइंड करना है. क्लास आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल. इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट, यू कैन टेल मी ऑन व्हाट्सएप. I will again explain it to you. Okay class, thank you.